केम शो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब के मनाशन प्यारे दोस्तों प्यारे दर्शकों आप जी निघा स्वागत जस कैमरे की नज़र प्रोग्राम जो थोड़े दीपक तिमान हर सोमवार शाम को लैके आता है और अज की एक बहुत ही विशेष कहानी हैगी सब तो बड़ी जी स्टोरी हैगी वो थोड़े नाल आपां पहला शेयर करते हैं मीट एंड ग्रीट विद पद्म भूषण डॉक्टर नंबी नारायणन एंड आर माधवन फिल्म एक्टर साडा वो एक्टर साउथ तो जिन्होंने बहुत वधिया वधिया मूवीज़ दित्तियां हैगियां उन्हां दी एक मूवी आ रही हैगी उहदे लई वो इत्थे अमेरिका दे विच आए हैगे प्रमोशन दे लई रॉकेटरी बहुत ही एक ओरिजिनल जिंदगी दे उत्ते साइंटिस्ट की स्टोरी हैगी तो उत्थे साडी जस दी टीम पहुंची और वो जिहड़ी कॉन्फ्रेंस हुई वो की गलबात हुई काफ़ी ज़्यादा गल्लां भी हुई मगर वो एक छोटा हिस्सा तुहानू मैं दिखाने जा रहा है मिस्टर आशू दी ए स्टोरी various permutation combinations and this program is conducted such a way only invited guests and very near and dear which can make this Rocketeer marketing value film to multiply, propagate and proportionate into a different level because you become the mouthpiece and a marketing mega material to the community at large. I'm really excited to be part of this and also once again welcome you all and GK and will explain further about some of the projects connected with like Janagi and other things. So that is going to be a big synopsis for all those. And also, it is happened to be, I know most of these ladies' favorite man is the one who wrote, directed, and this movie, Madhavan. So just one, you're going to have a part to meet with it, and he took almost 2 years and almost 100 crores rupees to make it. Now, I would like to invite Dr. Thangam Arvind, Chair Janaki Project K Chennai, to share a few words. Rocketry, the Nambi affair, and also the felicitation even for our legend Sri Nambi Narayanan and also and cine actor Madhavan. Thank you for everyone coming here. My role today is to present about the project called Madhavi, called Janaki. That project is something which is very, very unique. I'm not going to go very detailed about this project. The goal is to cover almost like 500 women. And we are going to be making that every woman has something which is very unique role. The historically popular and also like an achieved woman in the history. I'm so happy and privileged to be here and honor Dr. Nambi Narayan and Mr. Madhavan. Congratulate the whole team and wish you all the success. Thank you. In behalf of Anjali Entertainments, I am welcoming you all to this marvelous as well as a fantastic movie which is going to hit in market on July 1st, and we need all your support and make it as a big hit. It's in with you guys. Thank you all. Nor am I here to win a popularity contest. We are here on a mission. Stop chanting! Stop! There's no time! It's time for you to take us to the stars. What do you take me for? I'm a rocket scientist. How many people like me? How many, Mr. Hart? Fools who've been victims of their own patriotism. I will fight. Two of the brightest from India, actor director R. Madhavan and Dr. Nambi Narayanan. Very good evening, ladies and gentlemen. I'm going to share a quick experience with you all before we start this. I live in Bombay most of the time, and you know, one of the funniest things about living in Bombay is that getting stuck in traffic is part of your life, and you have to plan your toilet visits according to the Google map, you know, which is terrible. But you know, one doesn't mind waiting in traffic as long as everybody is going through the same gate. The irritation happens when somebody breaks the traffic rules
And even though you're standing in one lane, somebody weaves around here, and you think is getting to the toilet faster than you. You know, he's naturally blessed with silver hair. But for me to get every black hair of mine silver to look like his, involved sitting on a chair for 18 hours for 3 days in a row. And my wife said, you're going to be a bald husband soon. But thankfully it didn't, thanks to the oil and how we applied and how we saved our hair. And also how we put on weight and lost weight in quick succession so that we could look age appropriate in different parts of the film. One small step for man, one giant leap. No. What he actually said was, holy shit, how the hell do I get back? I'm a rocket scientist. जी आर माधवन जी, वेलकम टू यूएस। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आर माधवन जी, ये एक यूनिक नाम है रॉकेट्री, इस नाम के पीछे क्या राज है? रॉकेट्री जो फिल्म है ये एक बायोपिक है एक इंसान के बारे में, खास करके इस इंसान के बारे में ये कहानी है जिसके बारे में मुझे लगता है कि पूरे देश में लोगों को जानना ज़रूरी है, वरना ये हमारे तरफ से बहुत बड़ा गुनाह होगा कि हम ऐसे इंसान के बारे में नहीं जानते, जिनको आज पद्म भूषण दिया गया है। और आज नहीं, मतलब 2019 में दिया गया, और हम इनके बारे में नहीं जानते और ये नहीं जानते कि देश के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। और इनकी जो फील्ड है वो है रॉकेट साइंस, यानी कि लिक्विड प्रोपल्शन। ये इसरो में बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और इन्होंने एक इकलौता ऐसा इंजन बनाया जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ। इनके इंजन हर एक मिशन में, चाहे वो मंगलयान हो या चंद्रयान हो या जो हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मिशंस किए हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट लिए हैं, उन सब में इन्हीं के इंजन यूज़ किया गया है। और इस इंजन को उन्होंने बनाया कैसे, कि अपनी जान को मतलब कितनी बार उन्होंने जोखिम में डालकर इस इंजन को बनाया। और आज मुझे लगता है 65 या 70 से ज़्यादा लॉन्चेस हो चुके हैं और आज तक ये इंजन फेल नहीं हुआ। तो जो कि इनके बारे में ये कहानी है, इसलिए हमने फिल्म का नाम रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट रखा है। इस फिल्म की निर्देशन की बात करिए, आपने फर्स्ट टाइम ये मूवी डायरेक्ट करी है, तो कैसा एक एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी को एज ए डायरेक्टर डायरेक्ट करके? देखिए, वैसा मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैंने लाइफ में आज तक कोई आईफोन फिल्म तक नहीं डायरेक्ट किया, मैंने कुछ भी किसी को एक्शन या कट नहीं कहा। पर ये एक ऐसी कहानी थी जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। पहले तो मुझे लगा कि एक स्पाई केस है जहाँ पे एक खूबसूरत इंसान को इसलिए जेल में डाला जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक मालदीवन औरत के साथ अफेयर किया और इंडिया के जो रॉकेटरी के सीक्रेट्स हैं इसको पाकिस्तान को बेच दिया। पर जब सच बाहर निकला तो सब बौखला गए और पता चला कि झूठा केस है। और उसकी वही नहीं बल्कि इन्होंने जो हासिल की है, जब उसके बारे में पता चला तो लोग शर्मिंदा हुए। तो मैं ये कहानी लिखने के लिए ये ज़रूरी था कि इंसान को इनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता हो और समझ भी आए। तो जो कि मैं इंजीनियरिंगली इंक्लाइंड हूँ, मेरे को टेक्निकली बातें पसंद है और मैं इस इंडस्ट्री में किसी और के साथ ये बात भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनको ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रही थी। तो मैंने कहा यार लिख तो लेता हूँ, एक्ट तो करूँगा ही, क्योंकि यार इसको प्रोड्यूस करने वाला कोई और है नहीं, क्योंकि वो सब पूछते हैं कि भाई गाने कितने, फ़ाइट कितने, और इस पिक्चर में गाने की या फ़ाइट की गुंजाइश है नहीं। तो इसके बावजूद मैंने कहा कि चलो इसको मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ, पर मैं डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा था। पर एन मौके पे ऐसा हुआ कि जो हमारे डायरेक्टर थे वो नहीं कर पाए, वो एन वक्त पे उनको मतलब कोई तकलीफ़ हो गई और उसकी वजह से ये जिम्मेदारी भी मेरे सर पे आ गई। अब इस फिल्म को पहली बार डायरेक्ट करना, एक शॉट हिंदी में, फिर एक शॉट इंग्लिश में, फिर एक शॉट तमिल में, 3 अलग अलग फिल्म बनाना 6 कंट्रीज़ में, मोटा पतला दाढ़ी लगाना, ये सब मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में कभी करेंगे। पर ऊपर वाले की दुआ से सही वक्त पे और बजट के अंदर ख़त्म हो गया पिक्चर। आपके जो एक कैरियर की बात करी जाए, रहना है तेरे दिल में या टर्न ओवर्स मनो पार्ट 1 पार्ट 2, और अलग अलग तरह के किरदार आपने निभाए हैं, रोमांटिक भी निभाए हैं और अलग अलग तरह के किरदार में। इस मूवी में कैसा किरदार आपका देखने को मिलेगा? इस फिल्म में मेरा ऐसा किरदार है जो मैं हमेशा मानता था कि इंडिया के बारे में बनना चाहिए, जो कि हम सिर्फ हमेशा बनाते हैं कि हमारे स्वतंत्रता स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, ब्रिटिशर्स के साथ जो लड़ाई हुई या मुग़ल के साथ, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और हमें अपने इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। पर एक और क्षेत्र है जहाँ पर इंडिया सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ पे उसका नाम रोशन किया जा रहा है दुनिया भर में आज के दिन भी, जो कि साइंस, आईटी और स्पेस रिसर्च के फील्ड में, क्षेत्र में, और उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बना रहा। अगर हॉलीवुड में लोग पिक्चर बनाते तो लोग मानते हैं कि भाई अमेरिका सबसे शानदार कंट्री है क्योंकि वो मार्स पहुंच सकती है, या उनका अपोलो 13 मिशन सही रहा है, या फिर स्टीव जॉब की कहानी जो है वो बिल्कुल मतलब प्रेरणा सबको प्रेरणा देती है।
वैसे कई लाखों कहानियाँ हमारे देश में हैं, हमारे इंजीनियर्स के बारे में जो आजकल यूएस में आके अपना नाम रोशन कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनके बारे में कहानी लिखनी चाहिए, बननी चाहिए। तो इसी मतलब मैं क्या कहता हूँ, इसी इरादे के साथ मैं ये पिक्चर बनाया और इस फिल्म में मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट बनकर नजर आऊँगा। लोकेशंस की बात की जाए तो कौन कौन सी लोकेशंस पर इस मूवी की शूटिंग हुई? हमने इस फिल्म को तकरीबन 8 देशों में शूट किया, इंडिया, फ्रांस, वर्नन, जॉर्जिया, सर्बिया, कनाडा, ऐसे कई कंट्रीज़ में हमने शूट की, क्योंकि इनका जो अचीवमेंट है वो ये सारे देशों से संबंध रखता है कि यहाँ गए हैं, ये यूएस में पहले आईवी लीग साइंटिस्ट रहे हैं, ये स्कॉटलैंड गए हैं, ये फ्रांस में जाकर 3 साल रहे हैं इंजन बनाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो 8-9 कंट्री तो हमें जाना पड़ा। माधवन जी, बात करी जाए कि जो भी आपने मूवीज़ आज तक करी, आप उस रोल में एकदम से घुस जाते हैं, तो इस रोल को करते हुए जब इस किरदार को आपने निभाया तो उसको करते वक्त और इससे बाहर आने में आपको कितना समय लगा? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैं इस रोल को करते वक्त मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं हूँ कौन और मैं कर क्या रहा हूँ। सेट पे आते ही मुझे 10 मिनट के लिए प्रोड्यूसर बनना पड़ता था कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, पैसे वैसे आ गए, आर्टिस्ट आ गए, सब कुछ। फिर 15-20 मिनट के लिए डायरेक्टर बनना था कि भैया सेट हो गया, कौन सा सेट है, कॉस्ट्यूम ठीक है, खाना ठीक है, सब किरदार आ गए, सारे आर्टिस्ट आ गए, कोई प्रश्न। और फिर उसके बाद मुझे बनना पड़ता था एक्टर, और फिर जब मैं एक्टर बन गया तो डायरेक्शन भी साथ में करो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं हूँ कौन। और जब मैं मुड़कर अभी देखता हूँ कि यार मैडी ये किरदार में कैसे घुसा तू या बना, तो मुझे नहीं लगता कि इसका मैं कोई शय अपने ऊपर ले सकूँगा, क्योंकि ये ऊपर वाली की देन है सर। मैं अगर आप फिर से मुझसे ये कहोगे कि ये पिक्चर बनाओ तो मुझे नहीं लगता मैं बना पाऊँगा। डॉक्टर नंबी नारायण, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इतने बड़े सम्मान के साथ नवाजा गया, पद्म भूषण के साथ, और आपके जीवन पर ये फिल्म जो बनाई गई, आपके जीवन को बड़े पर्दे पर लोग देखने जा रहे हैं, आपका एक जीवन साकार होने जा रहा है बड़े पर्दे पर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? Actually, I am very happy. I consider this movie is going to be the best award among all other awards which are given to me, because this is the one which carries the message to the common man, because film field is so, I mean, it has a very high reach, so I think I am very happy about it. किरदार की बात करें, आपका इस मूवी में क्या नाम है? जो इनका नाम है नंबी नारायणन। तो जो इनका असली नाम, हमने जो भी इस फिल्म में दिखाया, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ तहे दिल से कि कुछ भी बात सिनेमैटिक लिबर्टी या झूठ नहीं है। जो भी आप देखने वाले हो, जो भी आपने देखा है ट्रेलर में, सब सच है। तो हमने उस सच को बरकरार रखने के लिए ना ही हमने चिपकाई है दाढ़ी। आप जो दाढ़ी देख रहे हैं सफ़ेद दाढ़ी, वो हमारी खुद की है, जो हमने ब्लीच करके बनवाया है। ऐसे हमने जो वज़न बढ़ाया है उसको हमने वाकई में वज़न बढ़ाया, कोई पैडिंग वैडिंग नहीं लगाई। जब हम पतले हुए हैं तो यकीन मानिए बहुत परेशानी के बाद पतले भी हुए हैं ताकि हम यंग लगें, पर इसलिए ताकि कोई भी बात इस फिल्म के बारे में झूठा ना लगे, ताकि इसी वजह से नाम भी नंबी नारायण है। जो रिलीज़ डेट है ये कौन सी डेट है? ये बस 15 दिन के अंदर है, जुलाई 1 तारीख को पूरे दुनिया में एक साथ रिलीज़ होगी। थैंक यू सो मच। और हम ऐसी आशा करते हैं कि पहली मूवीज़ की तरह ये भी मूवी जो है पर्दे पर धूम मचा दे, एक बिग हिट हो, और जो मैसेज आपने दिया कि एक इंडिया का एक मैसेज पूरे दुनिया में जाएगा कि किस तरह से इंडिया में ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए समर्पित कर दिया। इसके लिए डॉक्टर नंबी नारायण जी, हम आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और माधवन जी जिन्होंने आपके जीवन को साकार कर दिया पर्दे पर, उनके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच माधवन जी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈਓ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।